Sir, you are on mute. Sorry. ठीक है. So in the last few session, we saw this topic, that is the network layer performance, how the network layer can the performance can be measured. Sorry. Okay, so we saw a few parameters, okay, few terms, or a few, we can say, points from which we can measure the performance of the network layer via delay, throughput, packet loss, and congestion control. So we have done all these three. One, that is delay. We have seen different types of delay. Okay, then throughput, how many bits are passing through any point in a medium per second. एक सेकेंड में how many packets are passing from that particular point, that's a throughput. Okay, जितने ज़्यादा पैकेट पास होंगे, जितने ज़्यादा बिट्स पास होंगे, so that will be the, it will show the, आपका नेटवर्क लेयर का परफॉर्मेंस. Then packet loss, how much packet are being lost during the transmission of a packet of a data. Then you can measure the performance from this network layer also, from this point also. I'm getting distracted actually. Okay, so we have the last topic, that is congestion control. Okay, we'll come to the point directly now, because थोड़ा इधर उधर जा रहे हैं हम लोग. So in the last session we started with the congestion control, and we came to know that what is congestion. This is the, we can say a number of a more number of packets are accumulated at a particular point in the medium. Okay, and due to this congestion, no packets can be moved from one side to another side. Okay, just like a traffic or rush in a highway, on a highway. Okay, so this congestion can be controlled with the help of two mechanisms. Okay, and these two mechanisms are open loop congestion control, and the second is closed loop congestion control. Okay, in the last session we saw the open loop congestion control, that is prevention. I've given one example regarding this open loop congestion control, that if you are entering to the highway, then there may be number of instructions which are written on the board. Okay, on the one side of this highway, that you have to drive in this way, from left hand side, from the right hand side, ये speed होना चाहिए. Okay, in case of emergency, ये वो बहुत सारी चीजें that are written. So all these are nothing but in order to prevent the accident. Okay, एक्सीडेंट ना हो इसके लिए सारी इंस्ट्रक्शन होती है. ओके, अगर हो जाए एक्सीडेंट तो फिर कुछ उसके लिए क्या करना है, उसके लिए नेसेसरी जो भी मतलब कि काउंटर मेजर लेना है, तो उसके लिए वो ले सकते हैं. सो यहाँ पर भी हमारे लिए भी वही चीज़ है एप्लीकेबल, कि हमारा जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क के अंदर नंबर ऑफ पैकेट्स आर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. ओके, सबका सोर्स सेम नहीं हो सकता, सबका डेस्टिनेशन सेम नहीं हो सकता. So what can be the situation? Someone may be going from one point to another point, some going from you know different source and different destination may be there. So in the open loop congestion control we have a number of policies. Okay, so we have defined number of policies, like we have a retransmission policy, we have a window policy, then we have acknowledgement policy. Okay, how the packet will be acknowledgement, how the packet will be acknowledged. Okay, okay, all these arrangement we are doing just for the cause that congestion को prevent करना है. We have to prevent the congestion. That's why we have proposed all these policies. Okay. Okay, sorry for the inconvenience. So in open loop congestion control we have number of policies. Okay, that we saw starting from the
starting from the retransmission policy, how the packet should be retransmit. Okay, because we have a, we have a situation, and where the situation may arise that one packet has got lost now and we have to retransmit it. So which packet has to be retransmitted and which not. So we have the, some policy should be defined for that particular network, that how the packet should be retransmitted. ऐसा ना हो कि रिट्रांसमिशन करने करने से वापस से कुछ कंजेशन हो. So we have to take care of this one also. Then we have a window policy, that how many packets and how many packets are going to be sent if the packet are lost. Okay, so we have a kind of window that will, I told you that we have a topic, that is go back and window and selective repeat window. We have these two algorithm which are connected with your stop and wait protocol, and simple and stop and wait protocol. So we were having those two protocol. So again we are having these two protocol that we'll learn later. Okay, so we have this window policy. The window is to be defined in a proper way so that congestion should not occur. The third is the acknowledgement policy, because when we send, when the source is going to send all the packets to the destination, then not all the packets will be acknowledged. Okay, it is not necessary that all the packets should be acknowledged. Okay, कुछ को भेजना है किसको नहीं भेजना है, so that you need to decide, you need to fix, you need to mention, you need to decide. Okay, तो अगर ऐसा करेंगे तो आपके नेटवर्क के ऊपर कम से कम ट्रैफिक, ना ये सारा जो अरेंजमेंट एक्चुअली कर रहे हैं ना, ये सारा अरेंजमेंट बेसिकली आपके कंजेशन को प्रिवेंट करने के लिए. कुछ भी हो लेकिन थोड़ा सा रश कम हो. ठीक है, आपके नेटवर्क के ऊपर नंबर ऑफ पैकेट्स का जो नंबर ऑफ पैकेट्स वो कम हो. ओके, yes, okay. Then after that acknowledgement policy, we have a discarding policy. A good discarding policy by the routers may prevent congestion and at the same time may not harm the integrity of that transmission. कोई ऐसा कोई ऐसा पैकेट तो डिस्कार्ड नहीं करना है कि जो इम्पोर्टेंट था, तो जिसकी वजह से ट्रांसमिशन की इंटीग्रिटी हार्म हो जाए. तो जो भी देख के आपको, जो भी आप पॉलिसी डिफाइन करोगे, अकॉर्डिंग टू दोज पॉलिसीज, the router has to discard the packet. Okay. अच्छा, एक एग्जांपल देखो, मैंने आगे लिखा हूँ ब्रैकेट में, लेट आया. ओके, वी हैव पैकेट्स. ओके, we put a timer and then we send the packet. Okay, I know that from source to the destination it will take 1 minute, and from destination to the again source it takes 1 minute. Okay, so I have put the counter of 2 minutes. Okay, after 2 minutes what will be done? The packet will be discarded. Why discarded? Because हमारा काम तो निकल गया और वो लेट आया, so your router can discard it. So ऐसी कुछ पॉलिसीज हम लोग इसमें लगा सकते हैं. Admission policies are again which will be done by the switches and router. Okay, किस पैकेट को एडमिट करना है, किस पैकेट को नहीं एडमिट करना है, बिकॉज ये तो राउटर का काम ही होता है. When router will receive a packet, particular packet, then it will check whether the packet can be forwarded from its port which are connected to that particular router or not. Okay, तो अगर एडमिट करना है तो एडमिट करेगा, और अगर उसको पता है कि भाई तेरा डेस्टिनेशन तो यहाँ पे है नहीं, ओके, तेरा डेस्टिनेशन तो यहाँ पे है नहीं, तो जो आया तो उस पैकेट को क्या कर सकता है, वो एडमिट करना है नहीं एडमिट करना है, तो उसके हिसाब से डिसीजन ले सकता है. सो ऐसे कुछ पॉलिसीज डिफाइन किए. ओके, ये पॉलिसीज तो हम लोग ने सिर्फ आउटलाइन पढ़े हैं. ठीक है, बिकॉज वी कैन नॉट से एग्जैक्टली कि आपके डिस्कार्डिंग पॉलिसी में यही होना चाहिए, आपके एडमिशन पॉलिसी में यही होना चाहिए, आपके रिट्रांसमिशन पॉलिसी में यही होना चाहिए. ओके, इट मे डिफर फ्रॉम नेटवर्क टू नेटवर्क. ठीक है, हो सकता है कि कुछ पॉलिसीज चेंज भी कर सकते हैं. दैट इज नॉट फ्रॉम आवर एंड, बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम नेटवर्क टू नेटवर्क. And we are doing all this arrangement just for the cause that we have to prevent the congestion. In order to prevent the congestion, we have defined these 5 policies, starting with the retransmission policy, second window policy, third acknowledgement policy, fourth discarding policy, and 5 admission policy. Okay, so open loop congestion में ये 5 policies के बारे में लिखना होता है. Okay, coming to the next one, now we have a topic that is closed loop congestion control. अब भाई बहुत केयर किया, गाड़ी साइड से चलाया और 60 पे गया, 60 के ऊपर गया भी नहीं मैं नेशनल हाईवे पे, बट स्टिल एक्सीडेंट हो गया. ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, तो अभी क्या करना है,
immediately peoples will help me out. Okay, yeah, I will help out the peoples who have got who are encountered with the accident, and I will call the emergency numbers. ठीक है, एम्बुलेंस कॉल करना है, किसी को रुकवाना है, साइड में लेना है. सो ऑल these arrangement we are going to do on the highway. यहाँ पर क्या करेंगे? in network in network we have few mechanisms, again we have few techniques, we can say, from which we can the collision को, या जो आपका जो congestion है उसको आप remove कर सकते हैं. दैट्स अ रिमूवल पार्ट. ओके, जैसा करते हैं आप लोग एक्सीडेंट होने के बाद में गाड़ी को साइड में लेते हैं, कॉल करते हैं और वगैरह वगैरह जो करते हैं. सो दैट्स अ रिमूवल प्रोसीजर. So here also we have to make a removal procedure. How we are going to do it? We have four mechanism, we have four techniques from which we can remove the congestion, okay, which has already occurred now. नहीं नहीं बोल के हो ही गया है, occurred हो ही गया. अब करना क्या है? उसको रिमूव करना है, उसको मतलब क्या बोलते हैं ना, साफ करना है. द फर्स्ट टेक्निक इज बैक प्रेशर. ऑल फोर टेक्निक्स, इसमें चार टेक्निक है जिसके थ्रू वी कैन रिमूव द कंजेशन जो कि हो चुका है. ठीक है, so the first technique is back pressure, second is choke packet, the second is choke packet, the third is implicit signaling, and the fourth is explicit signaling. जस्ट theory है, इसमें कुछ इसका मतलब वो नहीं है, कुछ डायग्राम वगैरह. डायग्राम तो खाली स्टार्टिंग के दो का है. That's a very simple diagram. You need to remember these four method or four techniques or from four way from which we can remove the congestion which has already occurred now. Okay, coming to the first one. बहुत स्लो चल रहा है. Okay, so closed loop congestion control mechanism try to elevate congestion after it has happened now. Okay, so we have several mechanism, we have several method from which we can remove the congestion. Okay, so the first is back pressure. अब back pressure तो आपको समझ ही गए होंगे. तो back pressure, तो back side में pressure लगाना, तो मतलब कोई है तो बोले ना भाई पीछे से धक्का लगाओ, तो बस वैसा है back pressure. Okay, the technique of back pressure refers to a congestion control mechanism in which congestion या फिर congested node stops receiving data from the immediate upstream node or nodes. अपने पीछे वाले से पैकेट्स रिसीव करना या डेटा को रिसीव करना, ये क्या करेगा? स्टॉप करेगा. ठीक है, और उसके पीछे जो वाले जो मतलब के जो नोड्स है वो भी अपने पीछे वाले से रिसीव करना स्टॉप करेंगे. दैट्स अ बैक प्रेशर टेक्निक. ठीक है, अब भाई देखो, ज़रूरी नहीं है कि कोई जो टेक्निक है, जो मैकेनिज्म है, इट विल वर्क 100% ट्रू. ओके, तो 100% वर्क करे ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट स्टिल वी हैव टेक्निक एंड वी हैव मेथड डिफाइंड बाय this closed loop congestion control mechanism, so we have to read it. Okay, the technique of back pressure refers to a congestion control mechanism in which congested node, जो node पे congestion हुआ है, आसपास में congestion हुआ है, वो क्या करेगा? It will stop receiving data from its immediate upstream node. ठीक है, उसके ऊपर वाली जो नोड है जहाँ से डेटा आ रहा है, तो वहां से क्या करेगा? वो इमीडिएटली स्टॉप करेगा डेटा और नोड्स. ठीक है, तो अब जाहिर बात है पीछे वाला स्टॉप करेगा और वो क्या करेगा? अपने पीछे वाले से स्टॉप करेगा और वो अपने पीछे वाले से स्टॉप करेगा और वो अपने पीछे वाले से. एंड दिस में कॉज द अपस्ट्रीम नोड और नोड्स टू बिकम कंजेस्टेड. अब जब ये स्टॉप कर देगा, विल सी द डायग्राम. ओके, so this is the router number 3. As you can see this diagram, you have a source. Okay, you have a source and you have a destination. Okay, I'll show with the help of diagram. So with the pointer, so this is my source and this is my destination. Okay, मेरे पैकेट्स यहाँ से आ रहे थे. Okay, और these are router. I told you that कोई ऐसा हिज बन के आएगा एक. ठीक है, एक सर्कल और डिस्क बन के आती है, उसके अंदर एक क्रॉस मार्क रहेगा. सो यू कैन ऑलवेज कंसिडर इट एज अ राउटर. ठीक है, तो ये राउटर्स होते हैं बेसिकली, नेटवर्क के टर्म्स में इनको राउटर बोलते हैं. सो दिस राउटर नंबर 1, दिस राउटर नंबर 2, राउटर नंबर 3. ओके, सो ये नोड यहाँ पर कंजेशन हुआ है. ओके, अब कंजेशन यहाँ पर हुआ तो व्हाट इट विल डू अकॉर्डिंग टू द बैक प्रेशर टेक्निक. According to the back pressure technique, your node 3 will stop receiving the data, will stop receiving the data from its upstream node,
फ्रॉम इट्स अपस्ट्रीम। तो क्या करेगा, इसने प्रेशर कहाँ डाला, यहाँ पर डाला। जब ये स्टॉप कर देगा, यहाँ से लेना स्टॉप करेगा, तो इसके पास में फिर क्या हो जाएगा, कंजेशन हो जाएगा। एक तो सबसे पहले आपका ये नोड नंबर 3 कंजेस्टेड हुई, ओके। जब ये कंजेस्टेड हुई तो फिर यस ने स्टॉप किया। जब ये स्टॉप करेगा तो यहाँ पर हो जाएगा कंजेशन, ठीक है। जब ये स्टॉप करेगा तो फिर कंजेशन यहाँ पर हो जाएगा। और जब ये स्टॉप करेगा तो ये इसके 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 पैकेट्स क्या हो जाएंगे, आगे मूव ही नहीं हो पाएंगे। जब मूव ही नहीं हो पाएंगे, योर सोर्स विल कम टू नो, दैट भाई आगे मेरे पैकेट्स जा ही नहीं रहे हैं, और मुझे क्या करना है, फिर मुझे क्या करना है, रोकना है, ठीक है। मुझे डेटा सेंड करना रोकना है, स्टॉप करना है। तो ये एक टेक्निक है। अब उनके जो पैकेट्स होते हैं, दे विल कम टू नो कि भाई हाँ ये वाला जो है ना, तो मेरा आगे पैकेट्स नहीं जा रहे हैं, तो ये वाला कहीं स्टॉप हो गया, ठीक है, या आगे कुछ तो कहीं तो कंजेशन हुआ है, तो इट विल स्टॉप सेंडिंग न्यू डेटा। तो वो स्टॉप करेगा। और जब ये स्टॉप करेंगे सारे, जब स्टॉप करेंगे अपने, और बाकी पैकेट तो जब आपके ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड होना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पर फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर थोड़ा स्लोली, ये बैक प्रेशर आपका थोड़ा सा स्लो प्रोसीजर है। यहाँ पर फिर आपका थोड़ा क्लियर होगा, यहाँ भी क्लियर होगा, यहाँ भी क्लियर होगा, ठीक है। तो ये एक छोटी सी टेक्निक है जिसके थ्रू आप अपने ऑलरेडी जो हमारा कंजेशन हुआ है, दैट कंजेशन कैन बी removed with the help of this technique. Okay, that's a back pressure. Okay, the congested node will stop receiving the data from its immediate upstream node. Okay, and then in turn the upstream node will also stop receiving the data, and the remaining node will also stop receiving the data. ठीक है। तो ऐसे कर करके लोग जो है ना, अपने बैक साइड की जो अपने पीछे वाले जो routers है, they will put pressure on that particular router, then that router will put pressure on the upstream node, that upstream router, then upstream वाला upstream को, upstream वाला और वाला upstream को, ऐसे करते करते आपका प्रेशर यहाँ से पीछे मतलब के चला जाएगा। ओके, सो दैट्स वन टेक्निक, एंड दिस में कॉज द अपस्ट्रीम नोड और नोड्स टू बिकम कंजेस्टेड। ओके, जब एक ने स्टॉप किया तो लोड कहाँ पे आ गया, उसके पहले वाले पे लोड आया, ठीक है। एंड दे इन टर्न रिजेक्ट डेटा फ्रॉम देयर अपस्ट्रीम नोड। तो इसने रिजेक्ट किया, जो जहाँ पर कंजेशन हुआ था उसने रिजेक्ट किया। जिसने जब रिजेक्ट किया तो ये वाले पे कंजेस्टेड हो गया। इसने फिर स्टॉप करेगा रिसीव करना, फिर वो क्या करेगा, यहाँ पे फिर आपका जो पहले वाला है वो हो जाएगा कंजेस्टेड। ऐसे ही करते करते प्रोसीजर जो है ना आपका लास्ट तक चला, यानी आपका आपका जहाँ पे सोर्स है वहां तक जाना चाहिए। एंड दे इन टर्न रिजेक्ट डेटा फ्रॉम देयर अपस्ट्रीम नोड और नोड्स एंड सो ऑन मतलब कि वो लास्ट तक आपके सोर्स तक पहुंच जाएगा, ठीक है। सो व्हाट्स द कोर कॉन्सेप्ट, और जो इसका मेथड है, जो मैकेनिज्म है वो क्या है। द मेथड इज दैट, आपका जहां पर जिस नोड पर वेयर द कंजेशन हैज अकर्ड, it will stop receiving data from its immediate upstream node. Okay, इमीडिएट अपस्ट्रीम राउटर जो वहाँ आ रहा है उससे रिसीव करना स्टॉप करेगा। और जब वो स्टॉप करेगा तो आगे वाला भी स्टॉप करेगा, वो भी रिजेक्ट करेगा तो आगे वाला भी रिजेक्ट करते 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 ऐसे करके सोर्स तक पहुंचेगी, ठीक है। द डायग्राम इज डैम सिंपल, यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस डायग्राम। यू हैव अ सोर्स, यू हैव अ डेस्टिनेशन, इन दैट यू कैन शो एटलीस्ट 3 और 4 या 4 और 5 राउटर्स, और किसी एक नोड को कंजेस्टेड बताना है और वहां से बैक प्रेशर डालते जाना है। तो बैक प्रेशर पीछे वाले पे आएगा, पीछे वाले का बैक प्रेशर पीछे वाले पे, एंड सो ऑन आते जाएगा। Okay, so this is one one technique is given in order to remove the congestion which has already occurred, ठीक है। we are learning about this closed loop congestion control, जहाँ पर congestion already हो चुका है, जहाँ पर congestion already हो चुका है, अब उस करने को हम लोग को क्या करना है, remove करना है, उस particular रायते को हम लोग को remove करना है, ठीक है। so that's a back pressure technique. Coming to the next technique, that is choke packet, that is also very, all four are very simple, just you need to understand the method, उसमें करना क्या है, main core concept क्या है उसमें, ठीक है। ओके, सो इन चोक पैकेट, द चोक पैकेट पहले सबसे पहले क्या है वो देख लेते हैं। चोक पैकेट इज अ पैकेट सेंड बाय अ नोड टू द सोर्स टू इन्फॉर्म इट ऑफ कंजेशन।
तो ये हमारा एक कॉल की तरह है। जैसे कि हम लोग अगर होने पर क्या होता है, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो किसी ने मैसेज किया है या किसी को कॉल किया 100 नंबर पे या 101 पे, एम्बुलेंस को हम लोग ने कॉल किया, कॉल करके क्या बताया कि भाई एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज ये जगह पर आओ, ठीक है। तो ये हमारा चोक पैकेट है। अ चोक पैकेट इज अ पैकेट सेंड बाय अ नोड जहां पर कंजेशन हुआ है टू द सोर्स टू इन्फॉर्म इट ऑफ द कंजेशन, ठीक है। यू कैन सी दिस डायग्राम। तो एनी हाउ आपका जो कंजेस्टेड नोड है इट विल ट्राई टू सेंड वन चोक पैकेट टू द सोर्स, उसको इन्फॉर्म करेगा भाई साहब हम लोग अटक गए, हमारा एक्सीडेंट हो गया है। तो यहाँ पर आप जो डेटा सेंड कर रहे हो, यहाँ पर सोर्स है ना वो, तो वॉट एवर डेटा यू आर सेंडिंग टू टू द to the nodes which are in line with us, okay, so please stop sending those data, okay। वो आप स्टॉप करोगे तब जाकर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा फ्री होंगे, वरना आप सेंड करते जाओगे तो हम लोग और कंजेस्टेड होते जाएंगे। So that's a choke packet technique from which one packet is sent from the congested node to the source and informed about the congestion or informed about the congestion situation that it has already occurred now. Please stop sending the next data or the next information. हाँ, देखते हैं और क्या बोलते हैं। नोट द डिफरेंस बिटवीन द बैक प्रेशर एंड द चोक पैकेट मेथड, दोनों में डिफरेंस। इन बैक प्रेशर द वार्निंग इज फ्रॉम वन नोड टू इट्स अपस्ट्रीम नोड। एज यू कैन सी यहाँ पर जो वार्निंग है, जो सोर्स को वार्निंग कैसे जा रही है, सोर्स को वार्निंग कंजेस्टेड नोड से अपस्ट्रीम नोड में जा रही है, फिर जो अपस्ट्रीम नोड से और अपस्ट्रीम नोड में जा रही है, then from upstream node to the source it will receive to the source, okay। And the warning in the choke packet method, how the warning is sent to the source, the warning is sent directly via choke packet to the source, okay। दोनों में ये डिफरेंस है। कभी कभार वाइवा में छोटा सा क्वेश्चन पूछ डालते हैं, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द बैक प्रेशर एंड चोक पैकेट, ओके। आगे भी दो आ रहे हैं, इम्प्लिसिट सिग्नलिंग, एक्सप्लिसिट सिग्नलिंग, दोनों का भी कंपैरिजन करने बोलते हैं। तो सिंपल एक दो लाइन के अंदर उसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ पर इन बैक प्रेशर टेक्निक the warning is sent from to the upstream node and to upstream node and so on, and it will receive to the source, and source will come to know that the congestion has occurred and you stop sending the next data. In choke packet, a direct a packet is sent to the source informing about the situation that congestion is occurred at this place now. Please stop sending the next data. तो दोनों में वार्निंग सेंड कर रहे हैं सोर्स को, लेकिन यहाँ पर अलग थोड़ा वे में है, वहां पर अलग वे में। In the choke packet method, the warning is from the router which has encountered congestion directly to the source station and the intermediate। अच्छा, हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन अब उनके अरेंजमेंट है, उनका मैकेनिज्म है, वो जाने, ठीक है, बिकॉज वी डोंट हैव मच इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक दैट इफ द पाथ इज ऑलरेडी कंजेस्टेड। आप में से काफी लोगों के मन में क्वेश्चन भी आया होगा ये, लेकिन अब उसको क्या कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव देयर इंटरनल मैकेनिज्म, उन लोग का अपना मैकेनिज्म है। तो इसके लिए एक सेकेंड, हाँ, तो इन लोग का अपना मैकेनिज्म है, तो वी डोंट हैव मच इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर मैकेनिज्म। सो अब जब ऑलरेडी ये पाथ आपका कंजेस्टेड है, कौन सा पाथ, ये वाला पाथ, ये वाला पाथ अगर आपका कंजेस्टेड है तो आप डेटा सेंड कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एज आई थिंक दैट वी हैव, बिकॉज राउटर्स आर कनेक्टेड टू मल्टीपल लिंक्स, ओके, बहुत सारे लिंक को कनेक्टेड होता है। सो द डेटा कैन बी सेंड वाया अनदर रूट ऑल्सो, ठीक है। तो कोई और दूसरे रूट से आपके सोर्स को वो क्या करेगा, इट विल ट्राई टू सेंड द चोक पैकेट, ओके। सो जब ऑलरेडी ये आपका लिंक जो कि शॉर्टेस्ट लिंक रहेंगे, ऑब्वियसली जब ये लिंक से आपका डेटा आ रहा है, इट मीन दैट दिस इज द शॉर्टेस्ट लिंक, एंड ये शॉर्टेस्ट लिंक से जाना तो है नहीं उसको, बिकॉज ये ऑलरेडी कंजेस्टेड है, ऑलरेडी रास्ते में डाकू बैठे हैं, ठीक है। सो तो वहाँ बैठे हैं, तो आपका अगर चौक पैकेट भी जाएगा तो उसको भी लूट लेंगे, इसलिए चौक पैकेट को आपको दूसरे रास्ते से भेजना है, एंड यू हैव टू इन्फॉर्म द सोर्स दैट भाई हम लोग को डाकू ने घेर लिया है, प्लीज आप जो है ना, तो मतलब जैसे आई एम गिविंग द एग्जांपल, तो यहाँ पर इन दिस केस यू स्टॉप सेंडिंग द डेटा, ठीक है। तो वन चोक पैकेट इज सेंड टू द सोर्स, and in short we are informing the source that please stop sending the next data, we are stuck now, okay। The intermediate nodes through which the packet has traveled are not warned, okay। वहां पर क्या होता है, यहाँ पर आपके बैक प्रेशर में आपके जो कंजेस्टेड नोड है और आपका जो सोर्स है, दोनों नोड के बीच में जितने भी राउटर्स है, जितने भी नोड्स है, all the nodes are warned about the congestion that has already occurred on the number 3।
तो सबको सबको पता चला तो बैक प्रेशर में कि भाई कंजेशन हुआ है, कंजेशन हुआ है, कंजेशन हुआ है, नोड 3 पे कंजेशन हुआ है, तो सबको पता चला। बट यहाँ पर चोक पैकेट के अंदर किसी को वार्न नहीं किया गया, कि किसी को वार्न नहीं किया गया, बल्कि डायरेक्टली सोर्स को वार्न किया गया कि भाई प्लीज स्टॉप सेंडिंग द डेटा. So that's you can say the difference between the back pressure and choke packet. Okay, coming to the next one, that is implicit signaling. We need to complete this implicit and explicit. दोनों सिर्फ थ्योरी है, बस उसके जो कॉन्सेप्ट है वो आपको याद में रखना है. एंड दैट्स ऑल फॉर द क्लोज लूप कंजेशन कंट्रोल. एग्जाम में क्वेश्चन में बता रहा हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन पूरा कंजेशन कंट्रोल का पूरा क्वेश्चन एग्जाम में आता है. ऐसा क्वेश्चन आता है ओपन लूप कंजेशन कंट्रोल एंड क्लोज लूप कंजेशन कंट्रोल, साथ में आता है 10 मार्क्स के लिए. अगर 10 मार्क्स के लिए आया तो आपको क्या करना है, in open loop congestion control we have 5 policies, in closed loop congestion control we have 4 techniques, 4 mechanism. तो इतना पूरा आपको लिखना होता है 10 मार्क्स के लिए. ठीक है, और आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है. 5 पॉलिसीज याद रख के उसको अच्छे से लिखना है, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन, एंड देन ये 4 मेथड का डायग्राम के साथ में एक्सप्लेन करना है. ओके okay, so we'll try to complete these two again two method, that is implicit signaling and second is explicit signaling. Okay, अब देखते हैं implicit signaling में क्या है. The first two are clear, one is back pressure, second is choke packet. Okay, in implicit signaling there is no communication between the congested node and the source. आपका नोड और सोर्स के अंदर कोई कम्युनिकेशन नहीं है. कैसे? द सोर्स गेसेस, देखो अब यहाँ भाई सब गैसेस का काम चल रहा है. द सोर्स गेसेस दैट देयर इज कंजेशन समवेयर इन द नेटवर्क फ्रॉम अदर सिम्टम. अब वो सिम्टम क्या हो सकती है, वो सिम्टम्स क्या हो सकती है, जस्ट लुक एट द एग्जांपल. फॉर एग्जांपल व्हेन अ सोर्स सेंड सेवरल पैकेट्स and there is no acknowledgement for a while, one assumption is that the network is congested. Okay, तो भाई साहब आपने 5 पैकेट भेजे हैं, 5 में से खाली आपके 3 पैकेट आए, 2 पैकेट आए, बाकी 2-3 आपके निकल लिए कहीं पे. तो ये एक क्या रहेगा, आभास रहेगा, एक हमारा गेस रहेगा, हमारा एक क्या बोलेंगे, हम इमेजिन करेंगे ना. आपका सोर्स विल इमेजिन कि भाई मेरे आए नहीं पैकेट, इसका मतलब कहीं तो कंजेशन रास्ते में हुआ है, कोई ना कोई बीच में रास्ते में बैठा है. ठीक है, तो मतलब मेरे पैकेट नहीं आए हैं. ओके, द डिले in receiving an acknowledgement is interpreted as congestion in the network. That's a very important point. You need to keep in mind that the delay in receiving an acknowledgement is interpreted as congestion. लेट आया तो जाहिर बात है भीड़ रहेंगी, रश रहेगा. कॉलेज लेट पहुंचते तो आप लोग बोलते ना कि सर रश था, बहुत रश था, बस में रश था, ट्रैफिक रोड पे रश था, इसके लिए आने में लेट हुए. सो फिर अब जब क्लास में कोई नहीं आएगा, 8 बज गए, 8:15 बज गए, 8:30 बज गए, फर्स्ट लेक्चर में अभी तक 4-5 लोग ही हैं, तो वाई, सो व्हाट आई विल गेस कि भाई ट्रैफिक होंगी रास्ते में कहीं पे. मेरा तो अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि भाई आप लोग तो टाइम पे निकल गए होंगे, लेकिन आप लोग यहाँ नहीं पहुंचे, मतलब रास्ते में कहीं तो ट्रैफिक रहेंगी. ओके, so that's a implicit signaling. Okay, मतलब the source will guesses. Okay, there is no communication, between the congested node and the source. ठीक है, तो implicit signaling का एक अलग रूप है, एक अलग वे है काम करने का, कि उसको अगर कभी it will guess and it will, if it will found that कि भाई हाँ मतलब के congestion कहीं पे हुआ है, cause how it will come to know, it will come to know with the help of the the acknowledgement which it has received from multiple packets, but not receive all the acknowledgement. Okay, तो सारे packets का acknowledgement नहीं आया है, then your source will guess that okay, there is a congestion, there is a congestion somewhere in the middle of this from source to the destination, and it will stop sending the next data. Okay, so this is about the implicit signaling. there is nothing, just एक खाली थोड़ा सा आपका सोर्स गेस करता है, और वो भी गेस कुछ सिम्टम के बेसिस पर करता है. ठीक है, so it will found that के some with the help of some symptoms, it will guess that there is a congestion in between source and the destination, and it will stop sending the next data. ठीक है, okay. उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लिसिट सिग्नलिंग. विल ट्राई टू कंप्लीट, ओनली 2-3 मिनट्स आर रिमेनिंग. सो इन एक्सप्लिसिट सिग्नलिंग the nodes that experiences congestion can explicitly send a signal to the source or destination.
अब देखो एक ये जो है ना आपके चोक पैकेट की तरह है, ठीक है, जस्ट ट्राई टू कंपेयर द थिंग्स, ओके। इम्प्लिसिट सिग्नलिंग तो बेचारा बहुत मतलब मासूम है, बहुत इनोसेंट है, क्योंकि उसने तो कोई कम्युनिकेशन कर ही नहीं रहा है, बस वो क्या कर रहा है, गैस करते जा रहा है, ठीक है। बट इन एक्सप्लिसिट सिग्नलिंग they are doing the communication, okay. But in the choke packet case, we were doing the communication with the source, okay, not with the destination. But in explicit signaling, there is a communication, or there may be a communication to the source or to the destination, ठीक है। तो या तो सोर्स के पास में भी जा सकता है या तो डेस्टिनेशन के पास में भी जा सकता है, ठीक है। यू कैन इमेजिन, यू कैन जस्ट सी दिस डायग्राम दैट इन द चोक पैकेट, in the choke packet in the choke packet we have contact the congested node has contacted to the source machine, ठीक है, जो source है उसको contact किए। but in the explicit signaling the congested node may contact to this source or may contact to this destination, okay। तो दोनों में से किसी को, that's the difference between the choke packet and explicit signaling। होता कम्युनिकेशन है, मतलब चोक पैकेट की तरह काम करेगा, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस ये आया है, ठीक है। ओके, द एक्सप्लिसिट सिग्नलिंग मेथड however is different from the choke packet. I told you that they look same, their working method is almost same, but थोड़ा सा दोनों में अलग अलग है। In the choke packet method what we do, a separate packet is used for this purpose। choke packet में we have seen in the diagram that one separate packet is sent, one separate choke packet is sent from the congested node to the source only। source को बताना है, source को inform करना है, okay। और यहाँ पर आपके explicit signaling में, in explicit signaling, in this explicit signaling method the signal is included in the packet that carry the data। दूसरे रास्ते से और भी बहुत सारे होंगे आपके मतलब पैकेट जो कि ट्रैवल कर रहे होंगे, तो बोलते ना भाई कहीं पे साथ में उनके चले जाना। तो यहाँ पर वैसा कुछ होता है मैकेनिज्म, लेकिन एग्जैक्टली कैसा होता है उसकी इंफॉर्मेशन अपने पास में नहीं। तो इन एक्सप्लिसिट सिग्नलिंग, sorry, in the choke packet one separate packet is used for this purpose to inform about the situation where the congestion has occurred। कि भाई यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया ये वगैरह वगैरह, आपने क्या कर दिया, आपने एक स्पेशल मैसेज भेजा, ऐसा आपने स्पेशल कॉल कर दिया, आपने 101 पे या 100 नंबर पे कॉल करके बता दिया कि हमें इस लोकेशन पे और हमारा एक्सीडेंट हुआ है, सो दे विल कम फॉर द हेल्प, ओके। दैट्स अ चोक पैकेट एग्जांपल। और आपका जो एक्सप्लिसिट सिग्नलिंग है, आपके पास में कुछ नहीं है, आपके पास फोन है ना कुछ है, तो एक गाड़ी जा रही थी रास्ते से, आपने उनको रुकाया, बोला भाई आप जा रहे हो ना, तो आगे पुलिस स्टेशन में या हॉस्पिटल में जाके इन्फॉर्म कर दो कि ये लोकेशन पे कुछ तो हुआ है, ये लोकेशन पे एक एक्सीडेंट हुआ है और दो मतलब के हमारे साथ में दो लोग हैं जिनको ज़्यादा लगा है, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, एक मैसेज साथ में लोग कर दिया, वो बोले ठीक है हम लोग जल्दी में हम लोग जा रहे, तो वो फिर जाएंगे आगे एंड दे विल इन्फॉर्म टू हॉस्पिटल और पुलिस स्टेशन, तो वेर एवर उनको इन्फॉर्म करना है तो वो जाके इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आपका एक्सप्लिसिट सिग्नलिंग है, ओके। और चोक पैकेट आपका क्या है, वहां पर आपने जहाँ आपने खुद कॉल कर दिया या आपने खुद चले गए, सो दैट्स अ चोक पैकेट एग्जांपल। ये आपका एक्सप्लिसिट सिग्नलिंग के अंदर यू आर सेंडिंग द डेटा वाया अदर पैकेट्स विच आर कैरिंग द डेटा, ओके। सो इन एक्सप्लिसिट सिग्नलिंग मेथड the signal is included in the packet that carry the data, okay। अब उनका इनका मेथड क्या रहेगा, their mechanism they know well, okay। explicit signaling can occur in either the forward or backward direction। I told you that it may go to the source or it may go to the destination। तो इन्फॉर्म या तो इधर करो तो इधर करो, explicit signaling में अलाउड है, ओके। सो आई होप ये सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एंड देन जो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट जो मतलब स्टेटमेंट आ रहे हैं वो आपको रिमेंबर रखना है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन दैट इज बैक प्रेशर। इन बैक प्रेशर टेक्निक, जहां पर कंजेशन हुआ है वहां से प्रेशर लगाया पीछे वाले को, पीछे वाले ने लगाया और पीछे वाले को, पीछे वाले ने लगाया और पीछे वाले को, करते करते यू विल रीच टू द सोर्स एंड सोर्स विल कम टू नो दैट द कंजेशन हैज अकर्ड, इन्फॉर्म्ड। Second, choke packet, one special packet is sent to the source via other route, one packet is sent to the source and informed about the congestion that has already occurred now, inform हो गया। Third one, implicit signaling, your source will guesses with some symptom,
क्या सिम्टम्स रहेंगे? Maybe symptom that ke all the packets, all the acknowledgement we have not. I have sent 5 packet, I have received only 2 acknowledgement. The 3 acknowledgement I have not received. हो सकता है 3 पैकेट लॉस हो गए, ठीक है? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कंजेशन हुआ है. So it will just guesses and it will stop sending the data. Okay, in explicit signaling it is similar, it is almost similar, it is similar, almost similar to the choke packet, but in choke packet one separate message is sent, one separate packet is sent to the source and informed about the congestion situation. Okay, but and it is sent to only the source machine, only source node को ही inform कर. But in explicit signaling, in explicit signaling the data, the signals are included in the packet that carry the data to the source or to the destination. इधर भेजो, इधर इन्फॉर्म करो, इधर इन्फॉर्म करो, दोनों जगह से किसी को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं. ओके, सो ये हमारे 4 मेथड्स है, दिस 4 mechanisms which are there in the closed loop congestion control. Okay, 4 mechanisms which are there in the closed loop congestion control, and these mechanisms, these methods are used in order to remove the congestion. These methods are used in order to remove the congestion. Okay, to elevate the congestion situation को remove करने के लिए 4 मेथड यूज होते हैं. ओके, अरे ठीक है. एग्जाम में क्वेश्चन, हाँ एग्जाम में क्वेश्चन जो है ना इसका साथ में आता है, ठीक है? इस एग्जाम में क्वेश्चन इसका जो है ना दोनों का, ओपन लूप क्लोज लूप का साथ में क्वेश्चन देखा हूँ मैंने, तो 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है. समझा या नहीं समझा, या रिपीट करना है? 4 मेथड समझ में आए? डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएट नहीं आता आप लोग को, इसके बारे में लिखना आता है. जहाँ जहाँ पॉसिबल हुआ मैंने आपको कुछ थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएट करके कुछ कुछ पॉइंट्स बता दिया, बट इसके बहुत सारे ज़्यादा पॉइंट निकल नहीं सकते, इसके लिए इसका डिफ्रेंशिएट नहीं आता है. हाँ, शॉर्ट नोट्स में लिखना होता है, शॉर्ट नोट्स में लिखना होता है, जैसे जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वैसे उसके बारे में लिखना होता है. डिफ्रेंशिएट करना मतलब आज तक नहीं आया, मैंने तो एग्जाम में नहीं देखा है, ठीक है? सो खाली इसको एक्सप्लेन करना होता है, दैट्स ऑल. ओके, आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग फर्स्ट. फरहीन मास्टर, तो आज के होस्ट फरहीन मास्टर हैं. तो फरहीन, आर यू प्रेजेंट?